burned like around 400 kg of sugar and around 2 to 50 kg of butter. So rolled on floor graphic. मत और ऐसे लेके अपने आप पे चीजें फेंक देगी, बोल मत, और मैं इसको आके और पोक करता हूँ. And now when I see Yash, he looks like a dim light bulb. पैसा निकलवाना किसी के जेब से और हमारे कंपनी में लगवाना is difficult. So you have to vote trust factor. Sorry for shifting it from the podcast to sounding like a coffee with Karan show. But आप लोग दोनों बहुत एक दूसरे का तारीफ करते हो. Are you guys just co-founders or are you guys a thing also otherwise? ये mystery है हर जगह, तो इस mystery है. ऐसा क्यों? लाइक यार सबको जानना होएगा ना, इससे मेरा टीआरपी भी तो अफेक्ट होएगा. वो सोचो थोड़ा. नहीं बट सच्ची में दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. लाइक आप लोग बहुत तारीफ करते हो एक दूसरे का. So I believe कि the whole YouTube is filled with कि boyfriend है मोटलू का, the guy is friend zone. वो तो पीपल बोलने ही वाले हैं. वो तो ठीक है, वो तो जो भी बोले लोग बोले. But we had our time. Oh my God, we've laughed out loud. कमेंट्स पढ़ने में पैसा वसूल हमको इतना मजा आ गया. हमको अमेजिंग कमेंट्स थे. मतलब मॉकिंग तो होता ही है, वो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें भी मजा आ रहा था पढ़ने में. लोग इतने मतलब इतने विटी है इंडिया के लोग. सही में दैट तो आई एग्री. द वे पीपल यूज देयर प्यारी है, दे दो इसको 0% इक्विटी पे. I mean it was honestly the best. I mean after Shark Tank, if you got this good comments, it's one of the best. I mean of course feeling. Reddit पे भी ऐसे कम्युनिटी चल रहे थे कि that guy was head over heels. Guys, what do you think about Rocka pitch? This guy was head over heels with a girl. ऐसे करके. और उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो पहले से डेट कर रहे हो. दूसरा बोल रहा है तुझे कैसे पता? बोले भाई मैं इनको जानता हूँ. बोले झूठ बोल रहा है. फिर वो अपने आप को प्रूव कर रहा है. वो अलग थ्रेड चल रही है. फिर नेक्स्ट थ्रेड अलग चल रहा है कि भाई ये I am Yash, marry me. And then तो ऐसे था सच में. Hi, this is Yash and we were already dating. फिर उसके नीचे दूसरा बंदा मैसेज करता है, Hi, this is Sonal's mother. Please prove yourself. तो बोलता है, Hello सासू माँ, कैसे हो? दोनों का अलग थ्रेड चल रहा है. Oh my God, people are so free, but people are so free. Really nice. और इसमें एक में तो पूरा उसमें थ्योरी बनाई है, पूरी स्टडी की है कि this was a well thought through marketing strategy, guys. These guys were involved with Shark Tank और इन्होंने दिमाग लगा के एक पूरा स्ट्रेटजी बनाई how to create hype and TRP about the founders. और उसका सोच समझ के उन्होंने ये मिस्ट्री क्रिएट की है. और उसमें फिर एक अलग थ्रेड चल रही है. I felt like Hari for some days, honestly. Oh my God, that's crazy. But मतलब आप लोग ये आंसर तो नहीं करने वाले. मिस्ट्री रहने देना. सोनल चाहती है तो फिर बता दो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये मिस्ट्री रहे. नहीं फिर तो हम नहीं इंसिस्ट करेंगे बताने पे. क्यों घर जाके आप लोग का झगड़ा होए हमारे वजह से. ऐसा नहीं. We have a lot of things to fight. So I remember we were coming here. We were in the cabin. We were fighting. We were fighting over all our issues. I mean, why haven't you read the questions? And then you were preparing. What are we going to say? Oh, iska answer ye. And then he's like cutting me all over. So he's cut me all over in all our interviews. So we are pitching. He's cutting me. We are on Shark Tank. He's cutting me. He's not letting me speak. And he was like, I am not going to let you speak. And I'm like all mad on him. So from there to teams, we had our fight on the way, and then we were late. Uske upar there was fight. Our cab got cancelled 2 times. Uske upar we were fighting. So we have like so many things to fight on. हमारे बहुत सारे arguments हम. But healthy arguments are good. Without healthy arguments, there is no growth. दिन भर ऐसे लड़ाई कर लो. रात में बोलते यार सोनिया क्या कर रही है? ये बोलती है यार कुछ नहीं. यार वहाँ बाजू में मेला लगा, झूला झूल के. So it's gone like. हम अंधेरी में रहते हैं. जोगेश्वरी में there's this मेला. I don't know if it is ईद का मेला, but I am सिंधी और हमारा भी न्यू ईयर तभी, गुड़ी पाड़वी भी तभी आता है. So we have no idea what that मेला is. And जब मतलब मेरे एरिया में नागपुर, there's particular सिंधी न्यू ईयर का मेला. So हाँ, चेटी चंड का मेला. And I've been in that मेला from my बचपन, and I have this memory of me with my family और मैं वहाँ झूले पे बैठी हुई हूँ. So this time we were so glued. I mean, we were screwed actually, not glued. But Shark Tank का जैसे boost सोचा था, वो हो नहीं रहा है. Things are going haywire. People are commenting, where's my chocolate? कितना late हो गया है. Team नहीं है. And that was the time we realized that shit, हमारे पास team ही नहीं है. So we've been doing everything on our own. कि now there's no team who can help us with the documentation. And
this is the first time after the episode that we are sitting बहुत calmly and we're talking to someone. So इतना भी time I would say नहीं मिला है, but so मतलब हमारे सारे interns ही है office में. interns are that too, they come like by 12:30, 12ish and they leave by 6. और वो 6 बजे चले जाते हैं. वो order अपना ship कर देंगे और customer queries जितनी address करनी है कर लेंगे. लेकिन in the end सब आता है हमारे कंधों पे. We are there to answer the customers. तो ये टीम बिल्डिंग का हमारा जो था वो थोड़ा सा एक फ्लॉ था पहले से कि हमको लगता था हमको सब कुछ आता है. और ये हर फाउंडर के साथ होता है. हमने ये चीज़ नोटिस की बहुत, मतलब रियली मैंने देखा जो डे 1 से ये प्रिपेयर होकर रहते हैं कि भैया ये मेरा पार्ट है, ये मैं अच्छे से कर लूंगा, बाकी ये 4 लोगों के लिए 4 टीम है. आपने बहुत अच्छे से किया ये चीज़. I mean I'm really मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं विदाउट टीम कर ही नहीं पाता. जो मेरी टीम वाले मेरे लिए अभी कर रहे हैं और जो XD के लिए वो लोग कर रहे हैं वो मैं विदाउट टीम कर ही नहीं पाता. तो मेरे पास तो खाली विजन था, एग्जीक्यूट तो पूरा का पूरा वोल्टेज ने किया. और अभी भी विजन भी जो ग्रो हो रहा है वो उनके साथ ही हो रहा है. लाइक दे आर एडिंग सो मच टू माय विजन राइट नाउ. आज मैं तो एक सिंगल ट्रैक पाथ पे था, एक सिंगल ट्रैक माइंडसेट पे था ना. ऐसे लोग ढूंढे भी कैसे? मुझे मेरे हमारे सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते. किया था वो गलत हो जाता है. हुआ है हमारे साथ, ऐसा भी नहीं है नहीं हुआ. तो हम बहुत से डिसीजन ऐसे लेते हैं कि हाँ ये तो है भाई, अब तो बढ़िया काम होने वाला है, फिर वो चीज गलत हो जाती है. you guys friends? I mean you know each other? No. So पहले से build this team. Yes. हाँ, तो that's commendable. Only Rishi, who's my intern, he's again my uncle's son. So like that is how he is connected to me since before. But he's joined us right now, and he's here to explore more options for himself for what he wants to do in future. That is it. But other than that, everyone else in my team, like I've not known them before. That's I really mean, commendable. I believe कि we've had a couple of people, but then the synergies don't match. So like Yash and me, we click. I mean, we are always opposite. I am someone who's way more energetic, and I am ready to explode anytime at 3 o'clock in the night. And he is the calmest person ever. I mean, I'm like, Yash, उठ, ये करना है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी. And he is like sitting calm, हाँ हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, मैं इस पे हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, I haven't had my food, और ये वो. And I'm like shit, I'm bursting like a firecracker एकदम ऐसा. Balance is very much required. Yes, Like we understand. over energetic is also wrong, Exactly. but that overly एकदम हाँ, so पीछे that is where restricted you know होना, that is the also Behavioral wrong. pattern में दो तीन Yes. चीजें हैं. ये तो एक ओवरऑल बिहेवियर हो गया कि शी इज वेरी एंथू ऑल द टाइम एंड अपने डिसीजन को इमीडिएटली ले सकती है और इमीडिएट काम कर सकती है. मेरा ऐसा है कि कामनेस में, लेकिन उसको अगर हम डीप डाउन करेंगे ना तो उसमें आता है कि इंट्यूशन फैक्टर. इसका इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग और इसका जो एक सेल्फ बिलीफ होता है कि ये बोलता है यार अभी के अभी करेंगे ये हो जाए. मेरा ऐसा होता है कि आई एम मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन. मुझे लगता है यार इसका पास डेटा क्या बोलता है, बाकी ब्रांड्स ने क्या किया, वो वर्क किया नहीं किया. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. कभी कभार अगर मैं ही कर लूँ ना अपने हिसाब से तो गलत हो जाएगा, और कभी कभार यही अपने हिसाब से कर ले तो वो भी बहुत गलत है. राइट. तो So guys, Rocka is also known as the new age chocolate brand. Can you guys elaborate what is the newness that you are providing with Rocka? Like क्या ऐसा new क्या है? What is so different about Rocka that no other chocolate brand as of now can provide? तो सिंपल थिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले वाले इसमें बताया था कि हमारा विजन फ्रॉम डे 1 यही था कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ लानी है जो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट थिंग. दूसरा मोस्टली क्या फॉरेन ब्रांड्स ही कर रहे हैं और या तो कोई नहीं कर रहा है. मतलब है कहीं ना कहीं वर्ल्ड में है लेकिन इंडिया में आ नहीं रहा है या है ही नहीं. तो ये हमारा विजन के साथ चालू हुआ था. तो पहले हम बोल रहे थे कि हैप्पीको चॉकलेट फैक्ट्री ऐसा नाम था, लेकिन आफ्टर शिफ्टेड टू मुंबई हमारे जो इन्वेस्टर है 100xVC, उनके साथ हमारी ये चीज़ पे बात हुई. उन्होंने वही बोला कि आपका विजन क्या है जिसके ऊपर हम कुछ एक स्टोरी लाइन बिल्ड कर सके और एक ऐसा ब्रांड को टैगलाइन दे या ऐसा कुछ बनाए जिससे वो बिल्ड हो कि एक परसेप्शन आ जाए कस्टमर के माइंड में कि ये लोग करते क्या है, वो एक लाइन. तो वहाँ पर भी डिराइव्ड कि हाँ हमारा ये विजन है. तो उन्होंने बोला ये विजन में क्या क्या आने वाला है आगे. मैंने बोला अभी तो हमने चालू किया इंग्लिश टॉफी, जिसको हम लिटिल बोलते हैं. इंग्लिश टॉफी के साथ साथ हम इसमें कुछ एक्सोटिक फ्लेवर्स लाना चाहेंगे. हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर देखेंगे तो समझ तो मैं फ्लेवर्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं. ऑलरेडी एक्सोटिक फ्लेवर्स आ रहे हैं 3-4. उसके अलावा हमारे आलमंड इन्फ्यूज डेट्स आते हैं जो दुबई में मोस्टली मिलते हैं, यूएई साइड वगैरह. वो काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ डेट्स होते हैं. वो आलमंड को बीच में से स्लिट करके वो कम्प्लीटली जैगरी से बना हुआ है. तो इट्स अ न्यू प्रोडक्ट. उसके अंदर फिर हम एक ऑरेंज पील डाल के एक ऑरेंज का उसमें ट्विस्ट आएगा. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं.
रॉका के एक्सोटिक फ्लेवर्स आ रहे हैं, जैसे हमारा पीनट बटर कप था वो भी हम फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, वो एक आएगा। उसके अलावा और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हमारे माइंड में और हमारे मूड बोर्ड पे जो हमारे ऑफिस में ऑलरेडी प्लान्ड रेडी स्टेटेड है अच्छे से। तो ये चीज़ हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये हमारा प्लान है। तो उसने बोला ये चीज़ कौन खाएगा, तो बोला ये चीज़ खाएगा मोस्टली जो आज के ज़माने के लोग हैं, आज के ज़माने के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, मैंने बोला हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, तो वैसे हम वैल्यू फॉर मनी भी देते हैं, वैसा क्वालिटी भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन पर्सन ने अर्न करना चालू किया है और जो यंग है वो लोग हमारा प्रोडक्ट खाएंगे। बोले फिर भी एज ग्रुप बताओ, हमने बताया 23 से हम स्टार्ट करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कॉलेज और व्हाटसोएवर। 23 से वो जॉब में अर्न करना चालू करते थे, बिकम इंडिपेंडेंट, बीट गर्ल और व्हाट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 23 गोज अप टू 45-50। बोला परफेक्ट। इंडिया में ऐसा ऑडियंस है, मैंने बोला मोदी जी ने खुद बोला था इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये रिसर्च डेटा बताता है हमारे पास 35-40 वाले लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ये कम उम्र वाले 35 तक के। तो बोला ठीक है, जेन ज़ी को और क्या बोलते हैं, नए ज़माने का, नया ज़माने का, न्यू एज, तो लेट्स मेक इट अ न्यू एज चॉकलेट। तो ये चीज़ से हमने डिराइव किया, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म हुआ, डिस्कशन हुआ। हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट ऐसा करें, या कुछ 3-4 और आए थे, यू कांट स्टॉप एट वन, जो फिर अनुपम ने बोला था कि ये ऑलरेडी कर रहा है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। नहीं, सेम नहीं है, उनका अलग Inspired. Actually, we got this review. A lot of people gave us this review that we are not a chocolate lover, but whenever we have Rocca, we cannot stop at one. So after we finished one, we have to have the second or the third one. But it goes with your brand also. You cannot stop at one. हाँ, बट दिस इज हाउ वी डिराइव कि हाँ हमारा चॉकलेट ये पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहा है, और ये नीश नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मार्केट मोस्टली इंपोर्टेड ब्रांड द्वारा डोमिनेटेड है। और ये ब्रांड ऐसा तो नहीं है कि वो इंपोर्टेड खा रहे मतलब उन्हीं का मार्केट हो गया, आज नहीं तो कल उनके भी कस्टमर बेस हम तो लेंगे और ले रहे हैं। आज भी लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं आई यूज्ड टू ईट लिंट, लेकिन अब मैं आपका चॉकलेट खा रहा हूँ। आज भी लोग आते हैं, बोलते हैं यार मैं तो फरेरो ही गिफ्ट करता था, लेकिन आई एम गिफ्टिंग योर्स। जैसे कुछ ज्वेलरी शॉप्स है, वो बोलते थे यार हम हर ज्वेलरी खरीदने के बाद फरेरो देते थे, आज हम रॉका देना पसंद करते हैं, और हम देना चाहेंगे और वो दे रहे हैं। और ऐसे और कुछ पायलट्स हमारी चल रही है बहुत से लोगों के साथ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक भी किया, तो हमारा और हमारे इन्वेस्टर्स का जो कहना था वो कहीं ना कहीं गलत नहीं हुआ। दिस इज वेयर कम्स न्यू एज चॉकलेट। सही बात है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वैसे ही होना भी चाहिए आई गेस, क्योंकि लाइक आज जैसे मैं भी पर्टिकुलरली XD तो चलो फास्ट फैशन ब्रांड है, सो ठीक है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू वेयर फास्ट फैशन क्लोथ्स एवरीवेयर। यू नीड दोस ब्रांडेड क्लोथ्स, स्लो फैशन क्लोथ्स आल्सो टू यू नो शो योरसेल्फ, लाइक एक्सप्रेस योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ फैशन आल्सो। So, but then I always asked those people कि okay, I understand that, but at least try to buy something from an Indian brand, because there are so many factors that change the quality of the product. चलो मैं आपको example देता हूँ, I won't take names, but any renowned international brand that is in contemporary luxury, not complete high-end luxury. High-end luxury में आपको वो problems नहीं आएगा, but contemporary luxury में आपको कोई भी नॉर्मल क्वालिटी का टी शर्ट पे भी खाली उनका लोगो प्रिंटेड रहेगा ना, दैट विल आल्सो सेल फॉर 4,000-5,000 रुपीस, ठीक है, कंटेम्पररी लग्जरी में, एंड द क्वालिटी इज नॉट इवन गुड, it's just that the brand is so big now that they can sell for 4,000 and people want to wear that for 4,000, ठीक है। Cut down to come to Indian contemporary luxury brands, okay, they are actually providing such good quality. अगर वो लोग कोई चीज का 4 या 5,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं ना, not all brands, I cannot generalize, but there are those few brands You're putting in efforts. in making that product and making you feel luxurious after wearing it. There are those exactly, and Indian brands का तो I can definitely take names also. There is a brand called Whopping Theories owned by a very good friend of mine. There is a brand called Almost Gods. There is Natigar. These brands are actually putting efforts in making those designs, in actually providing that quality, that fit, कि अगर आपको 4,000 रुपया खर्च भी कर रहे हो ना, उसके बाद आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यार ये तो किसी का भी खर्चा कर दिया, लग रहा है कि wow, what have they made? One is that, secondly you are putting money, you are supporting Indian brands. After all, भाई ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर बन सकता है जो इंडिया में नहीं बन सकता। Branding लेना है, कोई भी लेना है। Behind this new age chocolate was, I mean, behind the tagline, the only thing was that we are different from the traditional chocolates. Our chocolate is not something which is similar to a bonbon or a bar, I mean chocolate bar or bugs or
truffles. Correct. Now these are the only, I would say, बहुत ज़्यादा वो वाली क्लीशे मतलब हाँ, हर जगह मिलता है not cliche, Highly they're common. very popular. तो कैडबरी का बार, अमूल का बार, लिंट का बार, you name the brand and they have a chocolate bar. So the new age chocolate bars are something new, a new composition, newness made in a traditional way. So basically Rocca it's a chicky kind of a thing. So the caramel in between is hard, it's crunchy. So it resembles chicky. Again, Indian taste palettes, Correct. the tradition, but in a new way, dipped in dark chocolate for the Gen Zs, for the millennial, because now people are shifting from traditional sweets to modern chocolates, to Western culture. So chocolate for that, and nuts for the healthy version. So as we say, Rocca is actually made with 50% nuts. So in 100 gram of Rocca, you will have 50 gram nuts, and that is for sure. So we've also seen many brands जिनका अगर आप backside देखो, wherever they put the nutrition information, their ingredients, their first ingredients in any brand, the first ingredient is sugar. That is the highest in the whole bar. But if you see Rocca, it is almonds or pistachio, it's a nut. So that is somewhere a new concept of presenting chocolate in a different way. Healthier. A healthier way, I would say, more indulging way. And But are you guys sugar free? Sorry to interrupt. No, we're not. So you guys don't claim yourself to be a healthy. healthy brand हम लोग नहीं, नहीं बोल- हाँ, healthier. हाँ, we are healthier. healthier than Yes. the rest but Oh. not the healthy We're not Okay, okay, fair. So- But but it's never out of contention कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे हम जरूर करेंगे रिसर्च चालू है उस चीज पे सोनल इज वर्किंग ऑन दैट रेसिपी कि कैसे रॉका जैसा टेस्ट और टेक्सचर सेम चीज क्योंकि वो जो कैरेमल है वो शुगर के बिना वैसा टेक्सचर दे ही नहीं सकता और सेम चीज शुगर फ्री में कैसे बना सकते हैं Okay. वी आर डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दैट और जो मैंने Fruit आपको sugars are not, they Stevia. cannot आपको कैरमलाइज नहीं caramelize. कर हाँ, सकती correct. So हाँ you can make caramel out of dates, fruits, or तो any वो शुगर natural से sugars. बट वी आर डूइंग रिसर्च उसमें कि वो कैसे बना सकते हैं और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाने की इसमें कोशिश क्योंकि बन तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा So we can use, I mean, all the kind of substitutes we have: maltol, maltodextrin. Then we have xylitol. I don't know. I mean, they are even more harmful than the regular sugar we're using. Makes no point कि just to claim you're a sugar-free chocolate. I mean, it's honestly against what we're making, but we would never use that. So we are on it maybe sometimes. बट Yeah, द definitely. थिंग इज सेड ना कि जो हम डेट्स बना रहे हैं इट्स 100% शुगर फ्री इट्स स्वीटेंड बाय जैगरी एंड डेट्स का जो नेचुरल So that's one product you all can claim to be very healthy. yes that is very It is healthy, but not fit to be consumed by a diabetic Okay. patient. डायबिटिक Or, वालों को I mean, it still Diabetes has. problem It is होगा. calorie dense. It's sugar dense. Dates has their own sugar. Sugar, It's हाँ. really high. Yes. Then This I've heard. jaggery is another form of sugar. I mean, sugar is made from jaggery. So, I mean, But- sugar cane. So, लेकिन रेगुलर शुगर के मुकाबले इट्स वेरी it is healthy. Yeah, healthier They than the have, rest. I mean, they have nutrients. They have their other, I mean, compositions पूरे उसमें. But then, so white sugar is not good for you लेकिन अगर आप at the same place if you are consuming date sugar या it's consuming jaggery it's very much it's better. advisable yeah Yes. advisable और सब लोग बोलते भी है कि वो चीज़ better है Fair. Actually, yeah, definitely. If something is doing 100% damage Yeah. after consumption, and if you all can bring it down to even 50%, Exactly. there is nothing wrong in that. Yes. You all, till the time you all are not claiming yourselves to be a 100% healthy brand, it is all good. Like there is a very big audience. They don't care only कि भाई sugar It's है a नहीं हमको खाना है. protein-rich chocolate as well, Oh, because yeah. it is using 50% nuts, Hmm. and we don't really mix nuts. So if it's almond, it's 100% Californian almonds that we're putting. So for pistachio, we're taking like 2,500 rupees per kg pistachio, and we're putting एकदम मलाई मार के put it एकदम on a ऐसा table तो properly pistachio वाला version में we are not making any money we're losing money We are on that, losing but then people are loving it and we're selling it. लेकिन हमने एक बार launch कर दिया now people are liking pistachio version a lot हमारा तो Amazon एक प्रोडक्ट की वजह से आपकी बाकी प्रोडक्ट्स को भी तो हमारा Amazon visibility पे best seller मिलेगा. हमारा pistachio है Okay. तो और वेबसाइट पे भी काफी लोगों को पिस्ताशियो बहुत पसंद आता है लेकिन आलमंड वेरेज इज 800,000 रुपए पर केजी पड़ता है बल्क परचेस में और कम पड़ेगा लेकिन पिस्ताशियो 2000 के नीचे है ही नहीं
So we are not making अगर हमको वो MRP में देना तो सबकी MRP सेम थी, अभी हमने MRP थोड़ी सी रिड्यूस की तो पिस्ताशियो इज एट द सेम MRP, उसको हम ना बढ़ाया ना कम किया, बट वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग ऑन दैट. ठीक है, that is also part of brand building really, Yes. I feel. Yeah, that is there. I mean, nothing I wrong. believe कि 1-2 साल we have to put in money in the brand. Yeah, once people start liking it, आप 10 रुपया भी ऊपर उड़ा दो, 50 रुपया भी ऊपर उड़ा दो, people will take it until and unless it's not एकदम ही unreasonable, you know. और दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये भी आ जाता है, if you are able to build that thing कि pistachio is loved by one and all, और अगले 2 साल में इसका कंजम्पशन इतना हाई हो जाता है कि we can procure it in tons, तो automatically Your cost. हाँ cost effectiveness वहाँ बढ़ जाता है. Definitely. वहाँ Economies of scale तो will play a role. Economies of scale will play a big role हमारे ब्रांड में तो बहुत ज़्यादा. तो अगर हम वहाँ 1 रुपया भी बचा रहे ना, we'll be very happy. ठीक है. Of course. जहाँ कुछ नहीं बच रहा था वहाँ 1-2 रुपये तो बच Of course. Actually, And 1 B2C rupee, brand if you का convert in percentage, it actually saves a lot. और फिर उसको फिर अगर आप मल्टीपल 1000 ऑर्डर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे या उसको मनी Yes, definitely. इट विल प्ले अराउंड आने वाले समय में वो आ जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते क्योंकि पीपल आर लाइकिंग इट और हमारा भी कुछ छोटा मोटा इमोशनल कनेक्शन तो है ही इसके साथ, स्पेशली हमको अच्छा बूस्ट दिया. Fair. Of course, और होना भी चाहिए. Like why to discontinue something that is working well for you? Yes. Then तो आप अपने लिए you are digging your own grave. कैसा वाला बात उसका एमआरपी हम बढ़ा दे तो शायद वो नहीं बिकेगा, लेकिन चलने देना चाहिए. उसके वजह से आपके बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी तो एक विजिबिलिटी मिलता है. लोग बोलते हैं कि चलो बार-बार पिस्ताशियो नहीं, हम ये वाला ट्राई करके देखें. हाँ, इनका ये तो अच्छा है तो बाकी भी अच्छा ही होगा. ये सारे माइंडसेट भी तो प्ले करते हैं ना. We have 4 flavors, and one is pistachio, one is plain almonds, then we have coffee with almonds, and then we have blueberry cranberry with almonds. So almonds is common in all 3, and there's only one product that is different in terms of nuts, and if we discontinue that, it's Then a you monotonous. Yes. हाँ. I agree, and I feel that you shouldn't discontinue even if you all are not making money on it. It should be there, like you know. Correct. That is what is going to be the differentiator also in your brand. Yes. वो पिस्ताशियो से लोग Yes. रोका को जानने लग जाएंगे. And अभी जो हम एक्सोटिक फ्लेवर ला रहे हैं उसमें भी हम कुछ नट्स के साथ भी खेल रहे हैं एंड सम फ्रूट्स एज वेल. Very nice. हाँ, तो इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट सीरीज. तो हमने उसका एक अलग ही नाम रखा है, एक्सोटिक रेंज ऑफ रॉका. वेबसाइट पे अलग से पेज ही रहेगा, वो आएगा अभी एक 1.5 महीने में भी लॉन्चिंग. Very सो good. इट विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, एक प्रॉपर लग्जरी वाला एक एरिया रहेगा रॉका का जहाँ पे एक्सोटिक फ्लेवर्स रहेंगे. Interesting. सो वी कैन केटर दैट एकदम एक्सोटिक ऑडियंस भी अच्छे से, और वो इतना भी कॉस्टली नहीं है कि वो हम जैसे लोग भी ना खा पाए, मतलब हमारे जैसे नहीं खा पाए, तो वो लगभग सेम प्राइस पॉइंट में फॉल करेगा. Very nice. So it will differentiate from our अभी जो मार्केट में इंग्लिश कॉफी वगैरह चल रही है, इट्स मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. लोगों ने अभी दुकान में बनाना चालू कर दिया है क्योंकि So now we are becoming UK. तो Now अभी वो दुकान में बन English रहा है ये coffees चीज़. है. और 1-2 ब्रांड है, दे आर नॉट डूइंग ब्रांडिंग एक्सरसाइज पर से अच्छे से, और वहाँ पर वो प्रीमियमनेस नहीं दिखती, वहाँ पर बस रेगुलर ब्रांड दिखता है. तो वहाँ पर वी विल स्टैंड आउट विद आवर एक्सोटिक रेंज, प्लस हमारा ब्रांडिंग इज अभी भी नॉट ओनली, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट्स माय लव टुवर्ड्स द ब्रांड और हर लव टुवर्ड्स द ब्रांड, बट इट्स अ कस्टमर फीडबैक दैट आवर ब्रांडिंग शोज कि हाँ हमारा ब्रांड एक प्रीमियम है. और ये टैंक में शार्क्स ने भी बोला है. सो but we're still हाँ. yet to go and get to a place. हाँ, तो yet to achieve the 100, बट हाँ हम है थोड़ा बहुत. Fair. Of course, and वो जर्नी तो रहेगा यार. 100 अगर पहुंच गए तब इधर बैठ के क्या फायदा है? फिर मजा भी नहीं आएगा. फिर आप यहाँ पे बैठ के what are you trying to gain from this podcast? Nothing. You are already at 100. You will get nothing from the podcast. Correct. That journey should be there. That hunger should be there. That excitement should be there. Like, बिकमिंग अ फूड ब्रांड ना, ये चीज़ तो रेलेवेंट हर जगह है. हमने सीखी है हर लोगों से कि एवरी 6 मंथ 1 ईयर यू नीड टू इनोवेट समथिंग. Of course. एक नया प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करो, तुम्हारा ब्रांडिंग में कुछ प्ले करो या कुछ तो करो to become relevant on the customer mind. नहीं तो वापस क्यों आएगा. और एक चीज़ हम बहुत एक्सटेंसिवली कैलकुलेट करते हैं एज अ मैट्रिक्स, जो हमको लगता है हमारा ब्रांड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यही चीज़ से बनेगा, दैट इज एलटीवी आपको पता होगा, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर. of course. तो एलटीवी जब तक हम नहीं सोचेंगे तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे. मैंने आज बेच दिया, मेरा सक्सेस नहीं है ना. मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड बिकता रहे, एक कस्टमर 10 बार 20 बार खरीदे, तब वो एक लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बिल्ड होगा. और ये मल्टीपल 1000 कस्टमर्स के साथ बिल्ड होना चाहिए, तो उससे आएगा एक सस्टेनेबल धंधा आएगा. सही बात. क्योंकि आज नहीं तो कल कस्टमर खत्म हो जाएंगे ना, तो वो रिपीट आएंगे, फिर नए कस्टमर जो बड़े हो रहे हैं वो आप जुड़ेंगे, वो अलग चीज़ है. वो अलग होता है, बट रिपीट हाँ. होने चाहिए Repeat तब बहुत जाके है. नए वाले जुड़ पाएंगे. लाइफ टाइम Repeat नहीं होगा तो नए वाले वैल्यू जुड़ेंगे. ऑफ अ कस्टमर वी वैल्यू द मोस्ट. सबसे ज़्यादा हमारे इसमें वैल्यू उसी चीज़ की है कि हमको कस्टमर का एलटीवी सबसे ऊपर रखना है, कि वो कस्टमर हमारे पास साथ जुड़ा है. कैसे जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट विनर होना चाहिए जो थोड़ा बहुत है.
उसके अलावा हमारी पैकेजिंग थोड़ी बहुत विनर होनी चाहिए ऑफ कोर्स उसको उसको फील होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट होना एंड कस्टमर सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर एक D2C ब्रांड का Definitely. This is something we also realized very recently. And अगर आप XD के बायो पे जाते हो, हमने वहाँ पे कस्टमर केयर का ईमेल डाल दिया हमारे बायो में. कस्टमर केयर info@xd or support@xd.in. That कुछ भी टेंशन है, you can just drop in a mail here. On our bio only it is like mentioned कि भाई कस्टमर केयर is there. You can always call. Somebody will pick up. हमने 3-4 नंबर डाल दिए 2-3 नंबर हाँ very nice. सबके नंबर है उसके अलावा हमने एक पर्सनल एक इंसान रखा है जो सिर्फ उसी के लिए एक अलग से नंबर दिया उनका नंबर वो दिन भर कॉल अटेंड कर Okay. और वो आते रहते हैं Of course. हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कस्टमर को आती है और कस्टमर को ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे अभी फोन किया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए दे जस्ट नीड एड्रेसिंग हाँ आपने बस फोन उठा के हेलो बोल देना लगता है हाँ ठीक है बात कोई है. genuine हाँ, heart से yes, genuine genuine प्यार। Yes, yes. आपने बोल दिया मैम मैं देख रहा हूँ या सर मैं देख रहा हूँ आपको 6 घंटे में वेट मुझे कुछ नहीं पता क्या हो गया उसका ऑर्डर टूट गया रास्ते में खो गया उसने प्रीपेड किया था मैं बाहर हूँ मैं बस बोल दूँ ना मैम शाम के 6 के पहले मैं आई कम अप विद अ सॉल्यूशन दे हैव अ गुड ठीक है हाँ और फिर उनको Yeah, ब्रांड पे भी yes. ट्रस्ट आ जाता है कि भाई दे आर देयर ऐसा नहीं है कि Yes. प्रॉब्लम हो गया नाउ दे लाइक नाउ हम लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया नो दे आर ऑलवेज देयर Yes. वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू Yes. देम एंड वी कैन ऑलवेज फिगर अ सॉल्यूशन अ म्यूचुअल सॉल्यूशन व्हिच इज फेयर टुवर्ड्स बोथ ऑफ द आजकल पार्टीज उसके टूल्स भी बहुत अवेलेबल है वी हैव अ व्हाट्सएप एपीआई इट्स अमेजिंग थिंग बहुत अच्छी चीज बनाई है जो जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम बनाई होगी तो काफी सारे ब्रांड्स हैं तो वी कैन इंटीग्रेट विद शॉपिफाई उसको फिर हमारे शिपिंग पार्टनर के साथ इंटीग्रेट कर दो आपने ऑर्डर किया आपको शाम में वो ट्रैकिंग आईडी चली जाएगी फिर आपको उसकी जर्नी बता देगा 2-3 मैसेज से थैंक यू नोट आ जाएगा डिलीवर हो गया उसके बाद रिव्यूज के भी मैसेज आ जाएंगे सब होता है फिर अबैंडन कार्ट है व्हाट्सएप पे उसको मैसेज ऑटोमेटिकली यू जस्ट नीड टू सेट अप 2 दिन बैठ के पूरा बैठ के वो सेट करना है तीसरे दिन से वो खुद काम करेगा सही बात है तो ये एक अच्छी चीज़ है और अभी एक सबसे बड़ा इसमें एक्स फैक्टर आ गया एआई तो देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो व्हाट्सएप बॉट के साथ एआई को इंटीग्रेट कर चुके हैं तो अभी व्हाट्सएप बॉट बेवकूफ़ नहीं रहा अभी व्हाट्सएप बॉट में हम जो फ्लोज बनाते थे वो उतना ही आंसर करता था जैसे मैंने फ्लो बनाया हाय हाय का वो एक आंसर करेगा उसके बाद फिर सिलेक्ट 4 ऑप्शंस 4 ऑप्शन के अलावा उन्होंने कुछ भी पूछ दिया भाई मेरा ट्रैकिंग का ब्लैंक हो जाएगा 50 टाइप के आते हैं भाई मेरा ट्रैकिंग का है ऐसा पूछ दिया आते हैं आपको मैसेजेस यार मैं परेशान हो गया मेरा ट्रैकिंग का और उसके बाद बॉट बोलता है सॉरी आई डिडंट गेट यू प्लीज टेल अस अगेन हाँ, गो टू मेन मेन्यू ऐसा कुछ हाँ। तो वो बोलता है अरे यार ट्रैकिंग का है प्लीज कनेक्ट मी टू समवन बॉट नहीं समझ पाता अब वो एआई जो इंटीग्रेटेड हो गया चैट जीपीटी या एआई मॉडल तो वो तुम्हारी लैंग्वेज समझेगा उसमें भी 3-4 टाइप के मॉडल है एक तो वो डायरेक्ट सेल करेगा एक तो कस्टमर की जर्नी समझेगा और एक तो वो लर्न करेगा वो लर्न हम उसको बैकएंड पे भी करा सकते हैं तो दैट्स रियली गुड थिंग उसमें आप कस्टमर उसमें आप ऐसे लिख सकते हो यार मेरा ऑर्डर कहाँ है तो वो हिंदी समझेगा वो कंसर्न समझ जाएगा कि हाँ इट इज आस्किंग फॉर ऑर्डर क्वेरी तो फिर वो उस हिसाब से उसको जवाब देगा वेरी नाइस एंड सॉरी यस सर हाँ उसके अलावा अगर इफ क्वेरी इज नॉट अबाउट ऑर्डर वो ऐसे ही बोलेगा कि क्या प्रोडक्ट है तो वो डिफरेंट एआई वर्क करेगा वो समझेगा कि दिस इज नॉट अबाउट ऑर्डर का क्वेरी दिस इज अबाउट कस्टमर विन कस्टमर को हमको हमारे पास लाना है ऑर्डर करना है तो उस हिसाब से उसको रिएक्ट करेगा दैट्स रियली मतलब गेम चेंजर गेम फॉर चेंजिंग चीज है आज के यस डेट डेफिनेटली मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ था तो आई वेंट ऑन अ वेबसाइट इट वाज अ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का वेबसाइट ओके a very new website I had not heard of it but I had देखा था I went on the website I was checking their products I liked something कार्ट पे गया चेकआउट कर रहा था COD का ऑप्शन ही नहीं है ठीक है और वो देख के मैंने बोला भाई नया वेबसाइट है मैंने कुछ सुना नहीं है मैंने एक इन्फ्लुएंसर को इसके साथ काम करते हुए नहीं देखा मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता ना एंड इट वाज एन लिटिल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आल्सो जो मैं बिल्कुल भी प्रीपे तो नहीं करने वाला था भाई तो मैंने तो बंद कर दिया वेबसाइट COD का ऑप्शन नहीं है बंद कर दिया within 15 minutes I get a notification on WhatsApp from that brand hi Naman we just saw that you were checking out for this product if you want you can place this order on COD as well and मेरे को एक लिंक दे दिया जाता I could place that order on COD I'm like what it's not how like that is dirty like what is this एंड यू नो व्हाट इसके पीछे उन्होंने स्टडी कितना किया उन्होंने देखा होगा बिहेवियर ऐसा ऐसा होता है वो सब करके उन्होंने फिर को इंटीग्रेट किया yes and one more very small feature that is very helpful I feel कि पहले आपको COD ऑर्डर्स आते हैं आपके वेबसाइट पे तो आपको पहले उनको कॉल करके पूछना होता है is your order confirmed or not WhatsApp API के साथ ना जैसे ही आप उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया ना उनको एक कंफर्म या कैंसिल ऑर्डर का आता है if they click on confirm only after that will the order start processing so that is also a very good feature कि उससे RTO रिड्यूस हो जाता है बहुत correct
कि वो कस्टमर जेन्युइन है, उसने जब क्लिक किया और उसके बाद वो एड्रेस भी कंफर्म करता है, फिर से मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करता है, Yes. इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, तीनों बार यस किया तो ऑर्डर शॉपिफाई पे प्लेस हो गया। Yes. तो दिस इज रियली गुड इंटीग्रेशन जो व्हाट्सएप बॉट्स पे आजकल आने लग गया है। Correct. तो इससे कस्टमर की जर्नी आसान बन गई और हमारे लिए भी आसान हो गया एज हाँ, अ ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे पास कोई फेक ऑर्डर नहीं आ रहा है या वो आरटीओ रिड्यूस हो गया और कस्टमर को खुद को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ब्रांड कुछ कर रहा है। और मार्केटिंग एक्टिविटीज तो इट्स अ होल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। Yeah, तो हमारे पुराना डेटा वहाँ से लेके शॉपिफाई से लेके व्हाट्सएप बॉट पे और उसमें सेगमेंटेशन हो जाता है इमीडिएटली। यू कैन डू सेगमेंटेशन वहीं के वहीं की, ठीक है, पर्सन हु बॉट मोर देन 1000 रुपीज फॉर पास्ट 6 मंथ, उसका वो सेट ऑफ 400 कॉन्टैक्ट्स लाके दे देगा कि ऐसे 400 लोग हैं तुम्हारी वेबसाइट पे, तो वो 400 को तुम टारगेट करके टारगेटेड मैसेज भेज सकते हो। 400 में से 40-50 वापस आ जाता है, तो आपको रातों रात एक रिपीट ऑर्डर आ गया। Exactly. And that is very important Yes. for most of the D2C brands to follow Yes. right now. That these small things also make such a big difference in your sales, in your repeat Yes. customers, in your brand building with those customers. What those customers think about you as a brand, उसमें भी कितना फर्क पड़ जाता है ये सारी चीजों से। एंड द थिंग इज कि ये चीज सिखाने वाला कोई नहीं है, हाँ. तो खुद सीखे। ये खुद से ही समझना पड़ता है with time. Like, लेकिन हाँ, or get somebody experienced who has figured it themselves. अगर हम शुरुआत से बॉम्बे में होते तो आई कुड हैव सेड कि हाँ हमको अच्छे से कुछ मिल जाता, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर तो खुद फिगर आउट किया है, बट फ्यूअर I mean, it takes time, but Takes- Yeah, everything takes time. Like बहुत वो एक 1 out of 10,000 projects होते हैं जो रातों रात like boom हो जाता है। 1 out of 10,000. Otherwise those 9999 projects will take time. will take time. But उसमें से there are so many projects that take time and become where they are. आपके इन्वेस्टर रितेश की स्टोरी देख लो। हाँ. कोविड में he did a 450 CR का लॉस। What is 450 CR का लॉस? Yes. आपका मेंटालिटी उस टाइम क्या चल रहा रहेगा, आप क्या प्रेशर में रहोगे उस टाइम, लाइक बट द क्लैरिटी ही हैड एंड द कॉन्फिडेंस ही हैड ऑन हिज विजन। ये साल लॉस है ना, अगले साल फिर क्या है, लाइफ इज नॉट एंडिंग एंड आई हैव अ वे टू चेंज इट अराउंड आल्सो। he knew how to do it, he had that vision. Yes. And he the next year after a 450 CR loss he is doing a 1000 CR profit. अभी तो Right. It will take time. It will take time. Like everything does take time. But if you are on it consistently and if you know what you are doing, दो यार टाइम, हद से दो टाइम। Yes. चीज को बड़ा करने के लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। For sure. टाइम तो भाई दो। Yes. जल्द रश नहीं करना चाहिए आए तो फिर। Patience is actually the Yes, 100 for everything, for each and For everything, not just for business, for everything. anything you want to achieve or do you want to do, or even if it is a relationship or friendship, anything in life. You wake up, you sleep, anything, everything that comes in between, you need to be patient. If you're not So patient, you what was one challenge that you encountered, the one big challenge when you started your D2C brand? it happened after I started it, not before. After I started, I had thoda vendor issues, like the manufacturer issues. It wasn't working very smoothly with me. Plus, again, my mentality ka change. I did overproduction for one particular line of products. Okay. Not knowing कि यार actually D2C brands कितना बेच पाते हैं एक दिन में, या जो established brands है वो लोग भी इतना production करते हैं कि नहीं। I had no idea about that because the vendor also I was working with did not give me any clarity. हाँ. एक्चुअली एक सही तरीका क्या होना चाहिए, समझो आप एक मैन्युफैक्चरर हो जो 100 ब्रांड्स के साथ काम करता है। हर कोई आदमी ऐसा करेगा नहीं because that is a very good thing to do and nobody is that good, everybody cares about their money only, but this is what should have happened and I would have also done that. For example, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास 100 ब्रांड्स के लिए आप कपड़े बनवाते हो, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनका स्केल भी आप समझते हो कि वो लोग को उस स्केल पे पहुंचने के लिए भी क्या टाइम लगा है, ठीक है। अब मेरे जैसे एक न्यू एज ब्रांड कम्स टू यू and with the vision कि I want to make these many things. Your first step should be to guide me कि भाई इतना तो ये बड़े brands भी नहीं बेच पा रहे, तू कैसे बेचेगा? You should start with this much and then scale it to this much, not a problem. But that should have been the guidance Yes. I should have gotten. I did not. That guy also went for the money behind it. Now, oh, he wants to make so much, I'll make for a good scene. Good scene है मेरा तो उस time bad scene हो गया. I had a lot of dead stock that time with no idea only अब इसको निकालूं कैसे. I had no idea कि भाई अब ये तो अटक गया है हमारा। वो तो विद टाइम हमने बोला इस पे अटको मत, start doing things that are actually working in the market, like you know जिसके लिए people का डिमांड भी है और तुम भी अपना कंट्रोल में प्रोडक्शन रखो, you don't over produce,
we went into a made to order brand, not a रेडीमेड रेडीमेड भी है ही, मतलब मैं आपको कैसे बोलूं, कस्टमाइजेबल ब्रांड नहीं है कि हम आपको कुछ चाहिए हम उस हिसाब से हम वैसे नहीं बनाएंगे. वी हैव आवर ओन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, आवर ओन सेट ऑफ डिजाइन, उसमें आप जो भी ऑर्डर करोगे दैट विल बी मेड टू ऑर्डर. Like, जैसे ही आपने ऑर्डर किया उसके बाद we'll make it quickly within a day's time only, we'll make it particularly only for you and then we will dispatch it to you. So उसमें हमारा dead stock बहुत कम हो जाता है. But then, for example, I placed the order, you made it for me. What if I return it back, I mean, it's an RTV then? Yes, correct. That happens. That of course happens. उस केस में फिर थोड़ा हम लोग का वो डेड स्टॉक हो जाता है. But in most of the cases क्या होता है, the sizing is pretty general. And अगर मैं आपके लिए कोई पीस बना रहा हूँ तो मैं उसमें आपका कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ या इतना ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि खाली आप ही वो पहन सकते हो. तो मैं अगर आपने रिटर्न कर लिया, I can also wear that T-shirt. It is brand new. Like, you know, it was never opened from the package only. If a product is opened and we understand, oh, it was worn by someone and then returned, then we don't give that product to anybody else. Then we use that product for our own sampling. Okay. We need products for sampling also, correct? Right. तो वो वेस्ट करने से अच्छा ये जो रिटर्न वाले आता है ना, वो हम सैम्पलिंग में यूज कर लेते हैं. सिमिलर थिंग व्हिच वी डू एक्चुअली हमारा फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट पैक होते हैं ऑन अ फ्लो रैप मशीन, तो रोका थोड़ा वो होता है, एकदम स्टर्डी नहीं है, इजीली ब्रेक हो सकता है. तो जब वो उसमें फ्लो रैप में जाते रहता है तो बहुत से रोका ब्रेक हो जाते हैं, तो वो टुकड़े बन जाते हैं. वो कहाँ बेचे, तो वो बिकता नहीं, तो मोस्टली हम वो जमा कर लेते हैं और उसको एज अ सैंपल रखते हैं फॉर अ स्टोर, ऑफलाइन स्टोर. टेस्टर्स जो आप लोग ऑफर टेस्टर सैंपल छोटे छोटे. और उसके अलावा फिर उसमें हमने एक प्रोडक्ट ही बना दिया अलग से, क्योंकि वो सैंपल्स बहुत आ रहे थे, ज़्यादा निकल रहे थे वो. तो हम बोले इतना ज़्यादा तो हम सैंपल, हम उतना ऑफलाइन प्रेजेंस हमारा है भी नहीं, ऑनलाइन में टेस्टर सैंपल दे नहीं सकते. ऑफलाइन में वी आर प्रेजेंट एट नेचर्स बास्केट कोको कार्ट, जहाँ ऑलरेडी सैंपल्स की वैसी ज़रूरत कम है. लोग आते ही है वहाँ प्लेस्ड है, तो लोगों का ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है कि अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छा ही ब्रांड है, ले लेते हैं. लेकिन ऑफलाइन में हम कहीं कहीं जहाँ थे जहाँ वो दे रहे थे टेस्टर, कहीं फ्ली मार्केट में दे रहे थे, तो हमने फिर रिकॉग्नाइज किया कि ये बहुत सारा पड़ा है, तो हमने प्रोडक्ट ही बना दिया रोका बाइट्स. तो उसमें रोका के छोटे छोटे चंक्स हैं, यू कैन टेस्ट तो आप उसमें से टेस्ट ऑल नहीं, एक फ्लेवर का एक छोटा सा स्टैंडिंग पाउच आएगा, 99 mRP ऐसे कुछ, एंड यू कैन हैव दैट 50-60 ग्राम के रोका बाइट्स. उसमें छोटे छोटे रोका के टुकड़े रहेंगे, अनइवन साइजेस. अनइवन साइज में अनइवन फ्लेवर्स आल्सो. नहीं, फ्लेवर एक ऑलमंड का रोका बाइट्स है, ये बेरी का रोका बाइट्स है, ऐसे 3 अलग अलग 4 अलग. इंटरेस्टिंग, वेरी तो इंटरेस्टिंग. वो एक प्रोडक्ट हमारा अलग बन गया. भाई वेस्ट होने से अच्छा ये यूज इट द राइट वे. ऐसे ही होता तो है. रोका बाइट्स अभी हमने लॉन्च नहीं किया, अभी आ जाएगा. वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट थिंग टू डू यार, वेरी स्मार्ट थिंग टू डू जेन्युइनली. तो वहाँ पर हमारा सैम्पलिंग के लिए भी कुछ आ जाता है और कुछ सेल भी हो जाता है. सही है, सही है. हम देखो, अगर कोई प्रोडक्ट यूज हो जाता है तो हम ऑफ कोर्स सेल नहीं कर हाँ, पाते हैं, नहीं कर क्योंकि पाते. नहीं करना भी नहीं चाहिए और हमको करना भी नहीं है. कर पाते का बात नहीं, करना ही नहीं है हमको वो काम. तो हम वो वाले टी शर्ट्स को फिर हम सैम्पलिंग में यूज कर लेते हैं कि आज हमारे पास कोई नया टाइप ऑफ प्रिंट आया या हमें एक डिजाइन बना रहे हैं जो हम श्योर नहीं है कि बनने के बाद कैसा लगेगा, तो फिर हम वो ऐसी वाली टी शर्ट्स पे हम वो कर लेते हैं. हाँ. या कोई टी शर्ट जिसपे प्रिंट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाँ. जिसको हम बाहर भेज नहीं सकते, हम उसको भी फिर हम सैम्पलिंग के लिए रख लेते हैं. नाउ वी आर लॉन्चिंग पफ डिजाइंस आल्सो, ओके. the prints that are puffed out. Okay. ठीक है. हाँ. तो उसके लिए तो हमको बहुत ज्यादा सैम्पलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हर कलर का टेम्परेचर अलग रहता है. इफ आई एम puffing yellow, then उसका temperature and heat will be different. If I'm puffing red, then उसका heat and temperature will be different. तो पहले मेरे को सबका सैंपल करके अपना जो फिगर्स है वो नोट डाउन करना पड़ता है कि कौन से कलर में मेरा कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर क्या जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली देन तो SOPs बनेंगे पहले. यस, पूरा उसके SOP बाद आप आगे. यस. करेक्ट, वो तो होना ही चाहिए. लेकिन हमारे केस में एक प्रॉब्लम ये है कि हम एडिबल, हाँ, वो तो हमारा डेड स्टॉक मतलब डेड स्टॉक, यस उसका तो कहीं यूज नहीं होगा. सही बात है, वो फेंकना है, सही बात है. या वो फिर ऐसे कुछ So कंपनीज even, होते I हैं mean, हमारा जो shelf life है 6 months is what we quote. It goes, I mean, it is edible till 7 months, but still. To be on a But safer side, yeah, 6 is good. but after 4 months, once the product has crossed 4 months, we only keep that product for us for the testing, not the tasting. So it does not go to any customer कस्टमर or को 4-4.5 महीने पुराना प्रोडक्ट जाएगा भी. क्यों, क्या डिफरेंस आपको लगता है वो प्रोडक्ट? डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बीइंग अ D2C ब्रांड, आप अगर मुझे 800 रुपये का प्रोडक्ट मेरे से ले रहे हो, या एक इतना ही प्रोडक्ट है ना, कौन सा एकदम 800 रुपये, तो 800 रुपये का प्रोडक्ट है, वो स्पेशली फॉर कंजम्पशन इंडल्जेंस फैक्टर है, और आपको 4 महीने पुराना आएगा, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा माइंड में आएगा कि यार ये दिसंबर का प्रोडक्ट मुझे मार्च में कैसे दे दिया, या अप्रैल में कैसे दे दिया. plus it's almonds और अगर वो जो स्टॉक है इधर हमारे फैक्ट्री में या वेयर हाउस में कहीं पड़ा रह गया, इसीलिए आरटीवी, मतलब इसीलिए वो बचा हुआ है, और इस आरटीवी प्रोडक्ट है,
और या फिर हमने बल्क प्रोड्यूस Produce करके करके। रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि जो आमंड्स हैं हो सकता है कहीं सॉफ्ट हो जाए, आमंड जो अपना ऑयल होता है वो थोड़ा सा Secrete करता हाँ है। मीन वो तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि स्टेल हो जाए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि जो कैरेमल है अंदर का वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। तो मेक्स नो सेंस कि आगे वाला व्हेन ही इज पेइंग फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट, व्हाई टू गिव हिम अ प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट प्रीमियम। Fair, definitely. Very, और very ऐसा fair. हमने फिर इंश्योर किया कि ऐसी चीज़ें बहुत कम हो, तो हम हमारा प्रोडक्ट एकदम लिमिट में प्रोड्यूस होता है और like you said. लिमिट में ही रखा रहता है, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल के पास में। रेयरेस्ट केस में होता है कि हमारा कोई कार्टन कहीं रखा रह गया, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट हमारे पुराने मिल गए गलती से या कुछ आरटीओ आया, तब हम ये चीज़ Yes. ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, किसी को देना नहीं है, ये जाएगा हमारे सैम्पलिंग में। तो मोस्टली हम उसको फिर फ्रिज में रखते हैं और फिर सैम्पलिंग में ही देते हैं सारे। तो सैम्पलिंग में नहीं, वो टेस्टिंग में जाता है। हाँ, टेस्टिंग में We test that. और उसको वहाँ पर 3-4 महीने के लिए और रख दो, फिर उसको खोल के देखो कि क्या खराब हुआ, कैसे हुआ। I mean, बहुत सी बार क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगता है, इवन इफ यू डू फ्लो रैप विद नाइट्रोजन पैकिंग। सो वी डू फ्लो रैप एंड नाइट्रोजन पैकिंग। अब तक ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ, बट मैंने देखा है कि काफ़ी बार जैसे कैडबरी केस में देयर वर सम वॉर्म्स, तो वो टेस्ट करने के लिए वी डू कीप प्रोडक्ट्स इन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कि अगर कहीं बहुत ह्यूमिड है तो वहाँ कैसा एसी में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है फॉर मंथ्स। So And that is how 7 month old we भी, the worst case what can happen, you all want to हाँ, see that also. yes. जैसे इनिशियली Is जब what हमने we चालू do. किया था, हमको तो पता नहीं था ना कि हमारा ब्रांड ही 7 महीने पुराना नहीं है, तो हम फिर वो रखे तो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। बहुत से बार तो हम ऐसे पैकेट्स लेते हैं और उसको घर पे शिप कर देते हैं, घर से बोलते हैं वापस शिप करो, बोलते हैं ट्रैवल करने दो, देखते हैं ना ट्रैवलिंग में क्या हाल होता है उसका, खराब होता है सही बात product। About the boxes, बॉक्सेस कैसे होता है, क्या होता है, तो हम उसको प्रोडक्ट को 3-4 बार ट्रैवल करने देते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो 100-200-400 रुपये लग रहा है, लेकिन ठीक है, हमको एक इंसाइट मिल जाता है कि ट्रैवल करने के बाद प्रोडक्ट की हालत कितनी खराब होती है, ट्रक्स में कैसे वो उसको ट्रीट करता है। सेम बल्क ऑर्डर में हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि बल्क ऑर्डर हमने यहाँ से भेजा और हमको वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते डब्बे टूट गए। अब वो सामने वाला बोलेगा यार मैं तो अपने स्टोर में बेचना चाहता हूँ, प्रोडक्ट तो अंदर का अच्छा है पर का डब्बा ही नहीं है, तो कैसे बेचूँ। तो हमने फिर वो भी आइडेंटिफाई किया कि यार ये चीज़ भी गलत हो रही है, तो फिर हम ऐसे मॉक बना के हमारे नागपुर में भेज देते कि ठीक है, वहाँ तक जाने में अगर हम बबल रैप लगाते तो कैसे पहुँचता है, उसका अगर थर्मोकॉल लगाते तो कैसे पहुँचता है, 5 प्लाई का कार्टन, 7 प्लाई का कार्टन, ये टेस्ट करने के लिए तो हमको 500-1000 रुपये लगता है, लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड एसओपी मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम पे ऐसा वही भेजना है। follow करना है। ये वाले इसमें कुछ भेजा तो नया परफेक्ट नया गया है। हाँ, फिर सामने वाले से कंप्लेंट I नहीं। remember जब हम in 2020 near 2020 जब खत्म हो रहा था या 2021, we just started our Amazon, और वो भी आउट ऑफ ऐसे मतलब हम लोग तो ऑफलाइन ब्रांड ही थे और बिल्कुल प्रॉपर ऑफलाइन ब्रांड। तो आई डोंट नो हाउ बट यश ने एक आईडी बना दिया Amazon पे, स्टार्टेड सेलिंग। तो दिन का 1 या 2 ऑर्डर आता था और मेरे पास सब बहुत बड़े बड़े कार्टन, तो आई शुड कट द कार्टन्स, पुट इट, एवरी टाइम देयर वाज एन ऑर्डर ऑन Amazon I used to get cranky because all my staff is behind that order, that one dabba of Rocka is what we're selling. So I mean तब इतना वो भी नहीं था, the Amazon guy would not come, हमारा फैक्ट्री था थोड़ा अंदर में, वहाँ नहीं आएगा, बाहर आएगा मेन रोड पे, वहाँ दे आओ, या आएगा तो फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ेगा, आप नहीं चढ़ रहा। बट नाउअडेज आई हैव सीन कि विद D2C brands even the smallest parcel they go very nicely. Yes. पहले तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होता था, Correct, but अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ही create हो अब गया। हो बहुत गया, अच्छा बना। अब हो गया। कोविड सेकंड वेव ना, तब लोगों को आदत लग गई ऑनलाइन की, हाँ। और उसके बाद लोगों ने ये बिल्ड भी हो गया उनके अंदर कन्विक्शन और वो भरोसा कि नहीं भाई D2C होता है और प्रॉपर प्रोडक्ट आता है, क्योंकि तब कोई मजबूरी थी। तो उसके बाद से जो D2C सेक्टर बढ़ा है 2022 के बाद से, और उसके बाद फिर वो सेक्टर में बहुत सारे अनेबलर्स आ गए, जैसे शिप रॉकेट ने उसके बाद ही क्या स्केल किया, अमेजिंग स्केल। But Shiprocket is actually providing what beautiful services Right, also. right. Like you get to compare different prices on Shiprocket only, yes. and the cheapest price that you think is most viable for you, you get to book that, and that person will automatically come, take Exactly. it, deliver, and the entire process is getting recorded to both the parties, the Yes. sender as well as the receiver. इससे Yes. अच्छा आपको क्या कोई करके घर दे बैठे सकता आपके है? लैपटॉप में, आपके पीसी में है बस। बताओ, मतलब इतना अच्छा Shiprocket ने तो काम There कर are दिया other- D2C brands के there are लिए. other enablers as well. I mean who are doing single day or the same day. सेम डे डिलीवरी। हाँ, उनका same खुद का day फ्लीट delivery. चलता है मुंबई में। जैसे हमने एक ऑनबोर्ड किया था, ब्लिट्स नाम रख दिया उन्होंने, पहले क्रू सिंपली था। तो उनका है कि मुंबई में उनका खुद का फ्लीट चलता है। तो अगर आपको 12 बजे के पहले जितने भी ऑर्डर आए आज,
तो वो आज के आज शाम तक शिप हो जाएंगे, शिप मतलब सॉरी डिलीवर हो जाएंगे। डिलीवर हो Wow. जाएंगे. Lips But और अभी they have done something, no? अभी उनका ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी था सेम लाइक शिप रॉकेट, दे हैव डिसकंटिन्यूड दैट, दे आर ओनली स्केलिंग देयर सेम डे Same डिलीवरी day. वाला मॉडल, तो दे आर बी ऑपरेशनल इन 4-5 cities across India. Like Myntra काफी ज़्यादा practice करता है. हाँ. I mean, if I order something yesterday, I'll get it delivered today. So But Myntra does hold a lot of inventory also, हाँ. right? That is also. जैसे Amazon का Yes. मॉडल है ना वैसा ही हाँ. FBA so वाला, FBA वाला. हाँ. तो उनके But Blitz is nice to you. Blitz is nice, same day डिलीवरी के लिए इट्स रियली गुड थिंग। मैं कुछ बात बताओ, Amazon आप लोग को RTOs के लिए क्या करता है? आरटीओ हमारे रेयरली आता है, मतलब ऐसे पूरे महीने में 4 आरटीओ आएंगे। So does Amazon take accountability for that, or is that your problem? नहीं सार प्रॉब्लम हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। सो Amazon का जो मोस्टली ऑर्डर है हम FBA से शिप होता है हमारा, लेकिन कुछ ऑर्डर्स जो है जो हमारे यहाँ से जाते हैं, कुछ SKUs जो वहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन जितने भी आरटीओ होते हैं Amazon हमारे अकाउंट से डायरेक्ट मनी डिडक्ट कर लेता है, और वो प्रोडक्ट फिर डबल नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट Amazon अलग से रखेगा और मंथ एंड में वो सारे प्रोडक्ट पैक करके हमारे ऑफिस आ जाता है। अच्छा, बट कितनी बार होता है ना कि जैसे दोस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपने अपना इन्वेंटरी स्टॉक कराया हुआ है, वहाँ पे इश्यूज के वजह से भी तो RTO आ सकता है, तो उस चक्कर में why will it come back to you? उस चक्कर में वो प्लेटफॉर्म कभी अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है, ये हमने नोटिस किया है। जैसे Amazon के साथ हमारा 1-2 बार हुआ है, Amazon के साथ रेयरली हमने प्रॉब्लम देखी है, फ्लिपकार्ट के साथ बहुत हुआ है ई कार्ट में, कि हमने जितनी बार भेजा है उनके वेयरहाउस में चूहे खा गए। I mean, we've got chocolate के box में बीच में hole. The chocolates are gone. It's चूहा कतरा हुआ. और काफी बार तो ऐसा हुआ है कि we have sent a box of chocolate to the customer. उसने RTG किया. We've got a pack of diaper. हाँ, वापस आया। So diaper, curtains, bed sheet. कुछ भी आ जाता है। yes, I mean- वो तो प्रॉब्लम है। और Amazon के साथ ये होते हैं हमने नहीं देखा। Especially with Flipkart. Flipkart Only में with ई कार्ट में Flipkart. बहुत हुआ है ये। E-cart. फ्लिपकार्ट में बहुत And Flipkart only do. फ्लिपकार्ट ई कार्ट एक ही है, हाँ वही करें। तो वही करते हैं. तो So ई कार्ट के साथ बहुत सारा हुआ चूहे है, का और इजी काफी शिप के problem. साथ कभी नहीं हुआ। तो उनका जो भी आरटीओ आता है वो हमको बस वो बिल कर देता है लास्ट में, उसमें से वो डिडक्ट हो जाता है, और बाकी जो भी आरटीओ का आइटम है वो रीसेल नहीं होता है, वो हमको वापस आता है। हाँ, तो वो हमको फिर जो करना है हम करेंगे। fair, वो दे डजंट टेक एनी अकाउंटेबिलिटी, उनका प्लेटफॉर्म का वैल्यू खराब है। fair, makes sense. So guys, tell me something कि यार Shark Tank पे गए, रितेश अग्रवाल ने इन्वेस्ट किया, बहुत आप लोग का सेल्स भी बूस्ट हो गया, but apart from getting great sales and getting a great investor, what was more that you guys learned from Shark Tank as an experience also and for your business also, कि भाई हाँ अब समझिए कि ये भी करना चाहिए और ये भी जरूरी है to keep growing, or what was personal that? branding Personal is one thing. पर्सनल I mean, बहुत you ज़्यादा समझ में आया। cannot miss on that. I mean, the girl from Delhi, the cinnamon. Cinnamon kitchen, Priya She Shah. is selling like crazy. Tiggle is selling like crazy. Goparo is selling like crazy. Then Niche hair. like niche hair. Niche hair. I mean, she was already An influencer. She was a big face. I would say, a big face. Not just influencer. She was working with some TV serials. She was a known face Okay. already. Okay. So. Yeah, Parul Gulab. Yeah. So, personal branding is one thing. Second is, I mean, don't shy away from your story. It's your story. It's your journey. Just don't shy. It's just own it. It's your brand. And if you see the episode, we were really scared. I mean, to be honest, we have left Nagpur. Nagpur has not left us. I don't know why. But then really scared. I mean, big cameras. And when we were walking, there were 2 cameras. There were 2 cameramen. This big of camera walking with us, like literal on our face. And when we are discussing, there are, I mean, some camera from here, some from here, and the 5 sharks. I mean, you've seen them. On TV. Exactly. And now you see them like little face to face, and they are asking questions, they're laughing, they're loving your products, they're, I mean, really, they're bashing you on the in the tank as well. So like, to me it was mesmerizing, and at the other, you know, it was like really scary. I mean, Was it a it was overwhelming? it हाँ, was overwhelming was Actually, the right it word. was a 2-3 day process ना, तो before the shoot उन्होंने 2 दिन पहले हमको already बुलाया था, तो उसमें Practice shoots. प्रैक्टिस होता है, उसके Yes. बाद हमारा पिच फाइनलाइज होता है, और हमको नहीं पता होता है कौन शार्क है, वो एक दिन पहले ही रिवील करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको भी शायद नहीं पता होता है कौन अवेलेबिलिटी किसकी कैसे है।
तो वो चीज़ जो होता है ना, तो वहीं पे हम इंटिमिडेट हो गए थे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमने कभी, और हम थोड़े ओवर मॉडेस्टी में चले जाते हैं हमेशा। हम ऐसे नहीं सोचते कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे, चलना देख लेंगे, हम बस हमारा ही तो है, अरे अब तक किया ना तो वी आर लाइक ओ माय गॉड क्या होगा, ओ माय गॉड क्या होगा, जबकि वी नो एवरीथिंग, बट हमको पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम थोड़े से वो हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते लाइक हैं। स्मॉल टाउन पीपल का प्रॉब्लम हाँ, इज तो वी आर नॉट कैशिंग ऑन दैट, और ऐसा नहीं बोल रहे कि इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट दैट्स आवर प्रॉब्लम। तो हम हमारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बहुत से बार। अभी हमने वो चीज़ बहुत अच्छे से लर्न की शार्क टैंक से, कि हाँ ये तुम्हारा ब्रांड है, यू हैव टू ओन योर स्टोरी टिल द टाइम आपने कितना सेल किया, कैसे किया, और जो भी आपने ऑब्स्टेकल फेस किया उसको कैसे ओवरकम किया। एंड योर मिस्टेक्स आर योर मिस्टेक, नो वन इज गोइंग टू गेट जस्टिफाई ऑन योर बिहाफ। आपने किया ना मिस्टेक, तो ओन दैट मिस्टेक। आप जाके वहाँ पर जाके बोलो कि मुझसे गलती हुई है लेकिन आगे नहीं होगी, दैट आई विल एंश्योर 110%। And that is a very big thing। मतलब आदमी को कोई आके बोलता भी है ना कि अगर भाई मैंने देखो ये वाली गलती कर दी है, बट मैंने इससे ये सीख लिया कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन वाला पॉइंट रहता है यार। हाँ बस सही है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब नहीं करेंगे, वेरी गुड। ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं, हमने सिली मिस्टेक्स भी की, बड़े मिस्टेक भी की, लेकिन वो सारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी, और वो नहीं है तो फिर जर्नी का मजा नहीं है। अब किसी मतलब एक अमेजिंग सिंगर ने बोला ये कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, गाने की लाइन है, सुना ही होगा। तो वो एक्चुअल में मेक सेंस हुआ वहाँ पर कि हाँ यार ये तो सच बोल रहा है कि यार ये सफर, हम जब ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना अपनी शार्क टैंक को, हम ऐसा नहीं बोलेंगे अचीवमेंट है बहुत बड़ा, लेकिन एक छोटा सा वैलिडेशन पॉइंट है, छोटा सा चेक पॉइंट है हमारे ब्रांड के लिए, और वी एज अ entrepreneur, we as a people, क्योंकि अब लोग हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नॉट ओनली आवर ब्रांड। करेक्ट। दिस इज आल्सो अ थिंग कि मैं जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं बीच पे जाके बैठता हूँ, बीच पे ऐसे तो लोग आके पूछते हैं ऐसे मेरा चाहता है, और कुछ लोग आके फोटो खिंचा रहे हैं मेरे साथ, मतलब नहीं भाई कुछ अचीव करने दो, आई डोंट डिजर्व इतना अभी, ये ठीक है, ये 10-12 दिन का ही घूम है, सही बात, महीने भर तक रहेगा हार्डली नहीं, बट बात है कि उसको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। आज भाई मैंने आपको कैसे उस टाइम एग्जांपल दिया, रितेश अग्रवाल का 4000 फॉलोअर्स था, एक सीजन ही तो बैठे ना वो भी, क्यों उनका 1 मिलियन पहुंच गया, क्यों देयर आर अदर शार्क्स जो 1 मिलियन नहीं पहुंचे, इवन आफ्टर सिटिंग 3 सीजंस दे आर नॉट एट 1 मिलियन, क्यों रितेश अग्रवाल इज एट 1 मिलियन, ही कुड कन्वर्ट दैट वेरी वेल, ही न्यू हाउ टू कन्वर्ट actually the permanent shark in the book. He was Still. just a guest वहाँ पे। Exactly, still he could convert it so well, like वो आना चाहिए आपको, कि ऐसा नहीं है कि वो फेम 1 महीने का ही है, नहीं, अब आपको वो मिल गया है, एक बार आपको वो लग गया है, now you convert it, now you convert it into Rocka being Yashan Sonal. This is our problem actually। ये हमने इतने साल से हमारे अंदर एक प्रॉब्लम रहा है कि हम खुद कैमरा, हम बोलते हैं यार हम क्यों जाए कैमरे के साथ, हमारा ब्रांड बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सारा चीज कनेक्टेड। वी हैव टू लर्न दैट, वी हैव टू नो एंड एक्सेप्ट इट कि ब्रांड हमारा है, वो हमारे थ्रू है, तो हमको हम खुद को भी थोड़ा बहुत वहाँ रखना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि आज का जो जमाना है ना, वो चाहता है कि ब्रांड के पीछे का चेहरा देखना, और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने तो उसके लाइव एग्जांपल अब देख चुके हैं, सबने देख चुके हैं। exactly, definitely Shark Tank is the biggest learning for every entrepreneur कि what those guys have done with personal branding for themselves, we need to learn from that। and see, आज I am hosting this podcast for personal branding, you all are a part of this podcast for personal branding, so we very well know what personal branding brings to the table, but at that scale and at that level what it has brought down for them, it is incredible। like आज ओयो को लेके कौन ना, पहले ओयो को लेके बहुत ज्यादा एक वो रहता था, टैबू था ना कि ओयो थोड़ी ना जाएंगे भाई, मतलब ओयो like you know वैसे टाइप के होते थे बात, एंड आज ओयो तो क्या हो गया भाई, रितेश अग्रवाल की कंपनी है ओयो, Exactly. वो डिफरेंस The देख रहे guy हो is so humble, the guy is so एग्जैक्टली। humble. हाँ, आज ओयो को लेके हाँ भाई रितेश अग्रवाल की कंपनी है, ओयो का बन गया है, इट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द ब्रांड ओनली, जबकि ही हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग, हाँ, करेक्ट। yes, हाँ, इट इज स्टिल द सेम होटल्स। आज छोड़ी ना वो 5 स्टार ताजमहल को ओयो तो नहीं बनाया है, exactly. the types of hotels are the same, the service is the same, everything else is the same, but just because Oyo is now owned by Ritesh Agarwal, there is so much respect for Oyo। Now you know Ritesh Agarwal as a person. Exactly। So when we got to know that Ritesh is one of the shark, and we were like, oh my god, वो तो पहले टाइम shark है, and why would he invest in a chocolate company? Why God, why are you doing that to us? And so on, and we're crying. Why isn't, I mean, why is Amit not there or anyone? in our back of my mind जब हमको ये चीज पता चल गया था ना कि ये ऐसा होने ही वाला है, तो हमने सोचा था कि रितेश से तो चाहिए इस दिन, जब वो सामने रियलिटी आ चुकी है, और Yeah. जब हाँ, और हमको तो पिच करना ही है, वो रात हमने निकाली, नेक्स्ट डे जो हमारा शूट था, तो हमने बोला था कोई आए ना आए रितेश तो चाहिए, क्योंकि रितेश के बारे में हमने बहुत सुना है, उसके बारे में हमने
पहले से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं, उनकी जर्नी भी हमको थोड़ी बहुत पता ही थी। तो हमारे अंदर ये था कि नहीं, चारों ठीक है, हमको चाहिए तो हमको ऑल शार्क डील, लेकिन अगर कोई नहीं आए, कुछ गलत हो जाए, चलो ठीक है, लेकिन रितेश तो चाहिए। सो रॉका के तो बारे में हम समझ गए, बट लेट्स टॉक अबाउट अ बिगर पिक्चर that everybody wants to understand. Okay, even I as a budding entrepreneur, and there are so many young entrepreneurs that would be seeing this episode and would want to understand and take few things with them from this episode, correct? So Rocka is a brand in the D2C space. But the D2C space is a very vast space where there can be many challenges, many issues, many things that you should know before starting a D2C brand, correct? What are your few very important suggestions or learnings that you would want to share with the D2C founders or the young founders or the people who want to start a D2C brand in future? Getting an investment is not the success, guys. It's just the stepping stone. It's just a point A, and you have to go miles. I mean, I've seen people with any I mean, I would say startup, not just D2C or any sector, when they think that भाई फंडिंग हो गई है मेरी, 1-2 करोड़ मेरे बैंक में आ गया ना, दिस इज अ सक्सेस, अब पैसा खर्चा करूंगा, सेल्स लाऊंगा और फंडिंग लूंगा. It's no story like that, guys. And again, raising a fund is not a piece of cake. It is. लोगों को लगता है कि हाँ, मैं मना नहीं करूँगा, मार्केट में पैसा है, बहुत है, लेकिन पैसा निकलवाना किसी के जेब से और हमारे कंपनी में लगवाना इज डिफिकल्ट. सो यू हैव टू वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए. एंड इफ यू आस्क अबाउट एक लर्निंग जो मैं स्पेसिफिकली देना चाहूँगा, और मतलब आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड फॉर दिस. Yes, but still you've learned something. You have a very good experience with you that you should share with the audience. So अगर मुझे कोई इस समय बोलता तो अच्छा होता. तो ऐसा था कि यार चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लाइफ विल थ्रो ऑब्स्टेकल्स एट यू एंड यू हैव टू स्टे देयर. बस लगे रहना. सो वन थिंग आई लर्न, पेशेंस, डिटर्मिनेशन ऑलवेज पेस ऑफ. आपको पेशेंट रहना ही है और जिद, हाँ, determination. ऐसा जिद की करना ही है, यही करना है. So if I can go back to my past, I would say every day I had more than 10 reasons to Leave it. drop, to leave this, to quit. I mean, to do some good job or something. Every day 10 new reasons. So I used to go to my factory, वहाँ के 10 टेंशन, वहाँ से घर आती थी रात में, घर पे वो 10 टेंशन ला रही हूँ, उसके हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, रात भर बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ये हो गया. Going back to factory with on new day, new mind, फिर जा रही हूँ, फिर 10 प्रॉब्लम घर लेके आ रही हूँ. So every day a lot of reasons to quit, but just one reason to stay was the brand, was the, I would say, the zeal. जिद कि भाई करना ही है, इतना आगे आ गया, अब नहीं छोड़ सकते. There's no way back. स्टार्टिंग पॉइंट ही वही था कि यार जॉब तो ठीक है, आज नहीं तो कल मेरे पास MBA की डिग्री है, इसके पास भी है, ठीक है, कम मिलेगा, 20-25 हज़ार का जॉब शुरुआत में मिलेगा, धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे, वो एक मेरे पास बैकअप है. लेकिन खुद का कुछ नहीं किया तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं. बिल्कुल. और जब मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने कॉलेज में 200 लोगों की 100 लोगों की टीम हैंडल कर चुका हूँ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे तो आता ही है. नहीं आता है टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन हाँ ये चीज़ माइंड में क्लियर थी कि हाँ मुझे कुछ तो करना ही है, और उसके लिए चाहे फिर कुछ भी बीच में आ जाए हम लोग करेंगे. बिल्कुल. और बहुत सारे, और फिर आई तो ऐसी चीज़ें आई कि मतलब कोविड आउट ऑफ एकदम से कैसे आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी है. I would say कि we've lost ourselves in this whole journey. I mean, it was one hell of a depressing journey, I would say, and we were not really qualified to fight the depression. I mean, I had some things back at home. ऑफिस में कुछ चल रहा है, फैक्ट्री में कुछ चल रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, यश का अलग चल रहा है. आई एम गेटिंग मेंटल ब्रेकडाउन्स. यश इज गेटिंग एकदम ही परेशान कि अब क्या करें. और आई मीन वहाँ पे आई रियलाइज कि यार हम थोड़ा कम खुश रहने लग गए हैं. जो चीज़ें हम पहले करते थे खुद को खुश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, खुद को रेलेवेंट रखने के लिए, वी स्टॉप डूइंग इट. आई समवेयर फील दैट आई एम ऑलरेडी अ 60-year-old जो सिर्फ ऑफिस जा रही है या ऑफिस गई नहीं गई, घर से काम किया, उसको ये टेंशन है कि शिट मेरे पास
2 दिन पहले का पालक रखा हुआ है, मैं वो कब बना के खाऊंगी. So I somewhere I've lost myself in this whole. So one big suggestion is कि ठीक है, things will come, they will throw things. I mean, you are going to you will get destroyed in this whole journey, but then don't leave yourself. Don't leave why you started. Don't leave yourself, because तुम हो तो तुम कुछ और आगे बना लोगे. तुम नहीं हो, because I've seen Yash. He was one of, he is a happy-go-lucky person. He's a sunshine. I mean, whenever in a group, when he used to come, there was laughter. There was good. There was positive energy around. And now when I see Yash, he looks like a dim light bulb. Same is with me. But then that is something we've lost somewhere. We've lost ourselves within the process. But then, yeah, it's just, I would say, a process. अभी resurrection point है. Yeah. वापस आ Yes, रहे हैं. definitely. And वो point आता ही है यार. Like I तो feel कि मैंने खुद के साथ भी ये होते हुए देखा है कि यार because of इतना सब stress है, XD का, brand का, इतना सब कुछ चल रहा है. I also मैं थोड़ा खुद को वो कर देता हूँ. जितना मेरे को होना चाहिए excited about things, और जितना मेरे को out there होना चाहिए, because there is so much going on. I also go on the back foot a little bit with everything, with my emotions also, with what I want to do also, with what I should be doing also. Everything goes on a back foot. But then again, once everything is in place, you have to start focusing on yourself also. Yes. You cannot just focus on. ये चीज है कि in this process ना हम ये चीज भूल जाते हैं कि the biggest wealth we have is our body. Yes. हम खाना नहीं खाते टाइम पे, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, आज भी होता है. तो ये चीज बहुत हमको ध्यान रखनी है कि we have to have a proper hydrated body, proper fed, ताकि हमारा माइंड अगर प्रॉपर सही माइंडसेट में प्रॉपर स्लीप मिले तो हम कर सकते हैं सब कुछ. Right. ये चीज हम मिस आउट कर देते हैं स्ट्रेस में, और ये इनएविटेबल है. हमको ये दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस नॉट गॉड्स. Correct, definitely. नहीं तो हमको ये सब कंट्रोल करने आता, हमारे इमोशन तो आज बात ही कुछ और है. Definitely. सो ये एक ही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, सोनल को भी बोलता हूँ और खुद को भी समझाने के बोलता हूँ कि जितने बड़े सपने उतना बड़ा सैक्रिफाइस. तो फोकस ऑन योर सपने एंड लीव असाइड सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस करने ही पड़ेंगे नो मैटर व्हाट. वो तो सही. तो सपने बड़े देखे हैं तो तैयार रहो थोड़े बड़े सैक्रिफाइसेस के लिए. हाँ, वो आप पे भी है कि आपने जो सपने देखे, आप कितने विलिंग हो, कितने सैक्रिफाइसेस करने के लिए टू रीच वेयर यू वांट टू बी. आपका विलिंगनेस भी वहाँ पे बहुत ज्यादा काउंट करता है. आपका ओपननेस टू सैक्रिफाइस आल्सो काउंट्स अ लॉट. Okay, but coming back to this topic only, and this would be the final segment of our topic also. This is like the fun segment where we say कि apart from work, as you guys said, you all have lost yourselves in the whole process, your individuality. Okay, how do you guys, what do you guys do or should do, maybe जो आप लोग का ही forte है, hobbies है, passion है, other than work, other than Rockup, क्या आप लोग करते हो या करना चाहिए to get yourself back in the reality कि भाई work is not everything, it is one of the biggest and the most important parts of your life, be it you being an owner or you being on a salary basis employee, anything. Work is very important, I agree, but other than work, your mental health, your state of mind is much more important. What do you guys do to chill, just chill? आज हमको भाई chill करना है, हमको भाई काम हम छोड़ दो, आदमी को chill करना है. क्या करते हमने पहले एक चीज गलती करती थी कि हमारे छोटे हो या बड़े हो, दुनिया के हिसाब से तो बहुत छोटे होने चाहिए, हमारे लिए भी बड़े माइलस्टोन. जैसे मेरा माल दिल्ली में 10 स्टोर्स में है और वहाँ 10 स्टोर से रिपीट आया, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और हमने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया. एक चीज हमारे माइंड में आ जाती थी कि ये चीज अगर मैं सेलिब्रेट करूंगा तो मेरी नजर ना लग जाए. तो बीइंग सुपरस्टिशियस ये चीज थोड़ी सी गलत है. ये चीज हमने अभी करना थोड़ी छोड़ी है. हमको लगता है छोटा भी माइलस्टोन है तो छोटा ही है सही, लेकिन है सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटा सा सेलिब्रेशन करना चाहिए. हमारे सेलिब्रेशन क्या होता है, कहीं हमने जाके पानी पूरी भी खा लेना बहुत खुश. हाँ, सही बात. और हम दोनों का ऐसा है कि अगर हम कुछ भी, अगर मैं अभी रैंडमली बुक माई शो खोल दूंगा, रैंडम मूवी, आई एम अ मूवी बफ, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है जो मैं पिछले 1 साल से नहीं देखी, लेकिन पिछले 6 महीने में, लेट मी टेल यू, 6 महीना भी नहीं, 4 महीने में मैंने करीबन 20-25 से ज्यादा मूवीज देखी. मैं सोलो मूवीज चला जाता हूँ. तू नहीं रेडी है सोनल? ने बोला यार मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे को ये काम है, मत. अच्छा, मैंने फोन रखा, मैं अकेला जाने से थोड़ा वो होता था. तो एंड आई लव डांस, मैं कोरियोग्राफ करता था कॉलेज में. आई एम अ कोरियोग्राफर एक्चुअली. ओके. एंड आई राइट. तो मैं कुछ भी पोएम्स कविता है, स्टैंड अप्स वगैरह कुछ भी लिखता था. तो मैंने वापस लिखना चालू किया पिछले 2-3 महीनों से, जब से हमको समझ में आया कि हमें छोटी-छोटी चीजों से खुद को एकदम ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. सही बात. कि ये प्रॉब्लम है तो मैं दिन भर काम करूँ यार, ये मैं लिखने बैठ गया तो काम कब करूँगा.
आप उतना टाइम सोच रहे हो तो काम वैसे भी नहीं कर पाते. सही बात है. Stress और and I believe when you are writing, when you are dancing, you are opening a different creative side of yourself, which will help you in the business also. Yes. That creativity, that creative mind will bring so much to the Yes. business. Exactly my point. लेकिन मैंने डांसिंग अब तक चालू नहीं किया वापस. So I want to start dancing. Secondly, writing थोड़ा बहुत चालू कर दिया. मैं अभी लिख रहा हूँ अच्छे कुछ चीज़ें. Very nice. एंड मैं बीच जाना रेगुलर कर दिया. मुझे पसंद है सनसेट पे बैठना. मैं जाता ही नहीं था, महीने में एक बार जाता था. अभी मैं हफ्ते में 3 बार जाता हूँ. Very nice. सच्ची में बड़ी सब छोटी आधा छोटी घंटे ही चीजें बहुत बैठूंगा, जरूरी लेकिन है. हाँ. बहुत जरूरी है ये सब चीजें. और फिर हम छोटी मोटी चीज़ें जैसे मूवी जाना है तो चल लेंगे. मेला लगा है कहीं बाजू में, हमको 2 मिनट मेले में जाना है. कोई कुछ मार्केट दिख गया, वहीं ऑटो रुकेंगे, वहीं जाके वहीं देखना है. इसकी जिद होती है. मैं फिर अब आजकल मैं मना नहीं करता हूँ. पहले बोलता था नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है. जब सच में टाइम का कंस्ट्रेंट है तब ठीक है, लेकिन तब मुझे पता है कि आज दिन एंड हो चुका है, 7-8 बज चुके हैं, तो मैं 15 मिनट इसकी बात सुन के कहीं थोड़ा कर लूँ ताकि इसका माइंड भी फ्रेश रहे. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. That is very So, good. That is very now healthy we are also. doing that. और ये भी कुछ चीजें अपनी एक्टिविटी करती है. इसको सोना बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम वो सोना भी है. बहुत जरूरी है. Sleeping is very important. मेरे को भी सोना बहुत पसंद है सच्ची में. I oversleep. I can sleep. I mean, अगर कोई ऐसे मुझे देखे तो उसे लगेगा कि लाश है. So either मैं बस बीच में 1 सेकंड उठ रही हूँ और देख रही हूँ अच्छा ये टाइम हो रहा है चलो फिर से सो जाता है. So कभी सोना, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है. तो हाँ, खाना अभी बहुत अच्छा मैं बनाती है. मेरा कुकिंग थोड़ा सा मतलब कम हो गया है, बट मैं पहले बहुत फ्रीक्वेंटली कुक करती थी. और बहुत तो अच्छा. हाँ तो देखो तो यही सब मुझे की वजह से वापस- मैंने वो कॉफी विद करण वाला बात किया था. वापस आप लोग मेरे को फोर्स कर रहे हो कॉफी विद करण मोड में स्विच होने के लिए. गलत हो जाएगा. नहीं नहीं, जो सच है वो है. हाँ, मतलब of course, of course. आउट ऑफ एवरी अदर थिंग जो रियल हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, मैं वो कैसे इग्नोर करूं. हाँ बिल्कुल. ये खाना बहुत अमेजिंग बनाती है तो बनाती है. Yes. चाहे कितना भी And that is also a very big part of Roka's product. Yes. The product coming out so well. So we've burned like around 400 kg of sugar and around 250 kg of butter only to perfect The that product. caramel. So तो we've done it. So इसके रेसिपी पे मैं डाउट ही नहीं करता हूँ. और ये डिजाइन लेके आती है, बोलता तू वो 4 डिजाइन है तू देख ले. बोलता तेरे को कौन सी पसंद है, बोले मुझे वो वाली पसंद है. डन. क्योंकि मुझे इतना भरोसा वो है लेवल इसके- ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत रिक्वायर्ड है फाउंडर्स के उसमें फिर मैं नुआंसेस जब ढूंढने बैठूंगा तब की बात अलग है. लेकिन फिर वो मेरे टेक्निकलिटीज होती है. वो डिजाइनिंग प्रोस्पेक्ट पे तो मैं कन्विंस हूँ कि भाई सोनल ने तो अच्छा ही काम किया. फिर टेक्निकलिटीज देखता हूँ कि ये नाम ऐसा नहीं, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, वो अलग बात वो है. अलग है. लेकिन जो एक The अपीयरेंस है, layout, yes. अपीयरेंस है वो तो फिर डन है. तो ये चीज है कि जो सच है, हार्ड ट्रूथ है, जो सोनल बहुत अच्छी जो चीजों में वो मैं ओपनली बोलता हूँ हर जगह. और गलत भी नहीं है वो चीज. हाँ बिल्कुल गलत नहीं है. आपको तो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट करते ही रहना चाहिए. आई मीन मैंने भी वो एंगल निकाला है टू गेट दैट टीआरपी एस्पेक्ट ऑफ इट. बट अगेन यू ऑल शुड कीप praising each other, even if you all are just founders, even if you all are just friends, even if you all are in a relationship. Either of the 3 things, but you all should keep praising each other because वो बहुत ही healthy bond होता है. Yes. उसमें कभी भी there is no competition between each other. yes. And when there are 2 founders or multiple founders, there can be reasons of competition. There can be reasons of conflict of decision making. Interest तो ठीक है, decision making also कि नहीं मेरे को ये सही नहीं लग रहा है, मेरे को ये सही नहीं लग रहा है. अब दोनों में से किसका So सुने? that happens with us most of the time. Most of the time. Our fight starts from कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है. We sit, we fight, we sit. At the end of the day, there has to be a solution. We come to a common ground. Either we'll do 50-50, ठीक है, तूने ये बोला, या it feels like I am in a court. I'm one lawyer, he's one lawyer, we're fighting a battle and we're proving like, see, this points, and he's like, ये देखिए, ऐसा वही, जो भी है, but मतलब पहले in ये the चीजें end, होती थी हमारे हाँ, बीच में कि in हम the किसी- end, it has to be कि ठीक है, we've एक come to solution a आना common चाहिए. ground. पहले हम हट जाते थे. जैसे अगर कुछ डिस्कशन हो रहा था तो मैं बैकआउट कर लेता था, यार छोड़ दे, तुझसे बात करना ही बेकार है. ये नहीं, बोलती थी नहीं है गलत. I'm sorry to cut, but this is me. I was the one कि रहने दे, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है, तू बात करने के लायक नहीं है. ऐसे करके I would back off. And I mean I was not someone जो इतना ऐसे deeply अपनी चीजों को prove करे बैठ के. But then I realized, he made me realize कि नहीं, it is important. It's not for a personal thing कि भाई, Exactly. it's for the business. Exactly. The silver lining to it हाँ. was कि आप लोग दोनों झगड़ रहे हो, आप लोग दोनों के points है, but वो दोनों points है to For a greater good. Yes, For the company. for the same thing only. Yes. To build Roka into a bigger thing. So those healthy arguments are very much important. Secondly, with initial days में तो ये होगा. With time, जैसे अभी आपने भी बोला कि आप इनके market branding
जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है वो ब्रांडिंग, एंड आप इनका प्रोडक्ट पे डाउट ही नहीं करते। तो विद टाइम आप लोग का ये भी डिस्टिंग्विश हो जाता है कि दीज आर योर एरियाज टू Yes. look after, these are my areas to look after, I won't interfere there, you won't interfere here, and after we are done like doing our own parts, will we come down, sit together and talk about the next step. Yes. Like then that is also a very clear and healthy journey for both the founders. What I believe is कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम्युनिकेशन Yes. और डिस्कशन। हर प्रॉब्लम का, कोई कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो, आप और मैं बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन तो निकलेगा। और नहीं निकला ना तो सॉल्यूशन का रास्ता मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिला तो एटलीस्ट उसको फेस करने की एटलीस्ट हिम्मत तो आए। और अगर ये तीनों चीज ही नहीं मिला ना तो समझ जाने का कि दोनों में से एक पर्सन को सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वॉक आउट ऑफ इट। सिंपल। तो कितना भी कम्युनिकेट कर लो, अगर फिर भी अगर नहीं मिल रहा है आंसर, तो समझ जाओ कि सामने वाला इज नॉट विलिंग टू solve the issue. They want to stick to something, and you then stop wasting your time and you just move out of that. Very true. तो हम बस डिस्कस करते हैं एंड वी कम टू सॉल्यूशन। तो बस मुझे लगता है मुझे ये चीज़ सही है, उसको लगता है ये चीज़ सही है, तो मैं बोलता हूँ तू प्रूव करना, मैं चाहता हूँ गलत प्रूव हो। मेरी चीज़ गलत है ना, चल बता। तो सही है। बोलती है तेरी चीज़ गलत है, हाँ तो बता ना। बोला तू गलत है, तू इंसान ही बेकार है, हाँ तो बता, मैं तो मैं कैसे। But सच्ची में आगे that good. his thing is he'll never leave the topic. He'll stick to it. So even if you're fighting, then we'll take a break off. ठीक है, तूने खाना खाया? नहीं। तू खा रही है? हाँ खा रही हूँ। ऑर्डर कर देंगे, ये खाएगी वो खाएगी जो भी है, we ordered it, and then he'll come back to that बता मैं topic. कैसे करूँ। हाँ अब बता। Now you prove your point, and I'm like, oh my मैं god. घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए बोलता हूँ मैं तेरे को पर्सनल अटैक कर रहा हूँ। अब बता ये टॉपिक क्यों गलत है। फिर सब हो गया, फिर ये खुद ही 2 मिनट में काम हो जाती है, हाँ सही है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं ही गलत निकलता हूँ ना, लेकिन मुझे पता है कैसे चलेगा अगर इसने टॉपिक छोड़ दिया या मैंने इसको पुश करना छोड़ दिया। पर्सपेक्टिव खुला ही नहीं। हाँ, मैंने पुश करना छोड़ दिया, मैं तो वो उसमें होना कि मेरा बोला हुआ सही है और फिर इम्प्लीमेंट किया वो गलत हो गया, तब तो बड़ा झगड़ा होगा। तब तो आके बोलेगी साले मैंने बोला था तूने ये गलती की, फिर मैं बोलूंगा तूने उस समय अपना क्यों नहीं बताया। हाँ. सही बात। और ये चीज हुई है हमारे साथ, तो फिर हमने समझ लिया। We've done everything, every kind of fight. We've fought like cats and dogs. हाँ, बहुत अच्छे से। बाप रे। बढ़िया मजा आता है मुझे। Right, good. Like It I is good. agree. It is good. I believe in this also, that you should explore perspectives. Like coming to the end of this conversation, this is what our podcast also stands for. Yes. Anything but wrong, exploring perspectives. कि believing कि आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है। बट जब तक मैं आप दोनों का सुनूंगा नहीं, तब तक मेरा पर्सपेक्टिव खुलेगा कैसे कि जो आप सोच रहे हो। So I need to explore different perspectives. I need to understand 10 different things and then come down to a final conclusion with what my gut also says. Of course, that's सुनो तो this should be the सही। process actually. Yes, It should exactly. be, I mean, That is ऐसा ही होना exactly चाहिए. where हाँ. we also stand. और कि बाद like में सब लोग perspectives सुन बाद में सकता। वो चीज को पकड़ के हम लोग हंसते ही हैं और कुछ नहीं होता है, मजा Yes, आता सही है। बात। और ये जब भी गुस्सा होती है मेरे को तो तुरंत हंसी आती है। He laughs on my face. I mean, मैं यहाँ पे गुस्सा कर रही हूँ. I'm literally scratching my head and he's laughing. So सब rolled ऐसा on होता है, floor बिल्कुल बोल laughing. मत और ऐसे लेके अपने चीजें फेंक देगी, बोल मत, और मैं इसको आके और पोक करता हूँ कैसे। So ये भी जाते हैं। I mean, I cannot boil more than 2 to 3 minutes. I just ऐसा explode होता है and then मैं बैठ जाती हूँ and then we talk. That's all. That's good. That's very good. But That's our way, I guess, of. And I think you all have figured out कि अब हाँ भाई ऐसे ही है हमारे लिए, this is working out and this will work out also ऐसे। और हर टीम का अपना डायनामिक्स Yes, सही बात है, सही बात और है। वो फिगर आउट हो जाएगा कुछ समय। सही बात है। और अपने आप उसमें ही से फिर एक बंदा होगा जो वो पूरा पर्सपेक्टिव अच्छे से जानता है, वो फिर पुश करेगा हाँ, ऐसे होना चाहिए, फिर धीरे धीरे सब यूज्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड दिस शुड बी द प्रोसेस, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। Very true, very true. ऐसे ही होना भी चाहिए and hopefully ऐसे ही होगा भी। आगे तो हमारा तो हो गई, हाँ। आपका भी होपफुली होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। But Just minus the fights, I would say. नहीं मजा आता है। maybe वो फाइट वाले से लोग थोड़े और रूमर्स भी निकाले तो why not? ठीक है ना। But guys, great episode. I'm sure like मैंने इतना समझा, इतना like being a D2C founder myself, Same here. D2C directly इतना सीखा, इतना समझा, use तो मैं भी करूँगा ही वो सारी चीजें अपने brands में. But I'm sure that our viewers have also learned a lot today, and you guys definitely have a new customer for Roka. I Thank you, personally thank you. don't eat chocolates, but my mom has asked me कि भाई Okay. अभी Roka अपने भी try तो करते हैं, लाओ. मैं बोला लाता हूँ. But I had a great time. Hope you Same, guys had guys, too. same. Thank you. Thank you so Thank much. you so Thank you much. Yash. सच्ची में बहुत अच्छा था Thank आज you. का Thank podcast. you, everyone. Thank you for having us. Same man.